مگر ایک حقیقت یہاں پر ذہن نشین رہنا بہت ضروری ہے جو کہ ان کے نرسنگا جو ہے اس نے بیان کی تھی، وہ آڈیو بھی میں آج یہ سنا کر میں اس پول کو بھی اب ایکسپوز کر رہا ہوں اسی کی زبان سے، اس اینگل سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ لف جہاد کا جو الزام پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا انڈیا کے سارے گودی میڈیا کی طرف سے، وہ پول اس کے اپنے خود کے، اس پنڈت کے اور اس کٹر ہندو کے منہ سے نکل گیا کہ مہیلائیں جو مسلمان مردوں کی طرف لپک رہی ہیں، ان سے محبت کر رہی ہیں، اس کے پیچھے وجہ اسلام یا آئیڈیالوجی تو بعد کی بات ہے، اس سے پہلے ہندوؤں کی ناپنسکتا ہے۔ میں انوشا کھوجا سسٹر الینا اور ایشا روئے کے چینل میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے مزیدار سا اور انٹرسٹنگ بھی ہے، جس کا نام ہے لو جہاد۔ تو آپ لوگ جو بھی دیکھ رہے ہیں پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہماری سسٹر کے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جتنا زیادہ شیئر کریں گے اتنے زیادہ لوگ ہم کو سن سکیں گے۔ یہ لو جہاد ہے کیا؟ آخر اس پہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، اور آخر مطلب ہم کیوں ڈسکس کریں اس ٹاپک کو؟ میں میرے سسٹر جو ہے میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے بھی رائے لوں گی، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ پلیز اس کو جتنا ہو سکے شیئر کریں فیس بک پر، واٹس ایپ پر، اپنے گروپس میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں سن سکیں، اور پھر ہم کالرز بھی لیں گے ساتھ ساتھ، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم آپ سے بھی بات کریں گے، آپ سے بھی رائے لیں گے کہ آخر لو جہاد ہے کیا، اور یہ صرف انڈیا ہی میں کیوں شروع ہوا ہے، باقی کنٹریز میں کیوں نہیں ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت زبردست ٹاپک ہے اور سینسیبل ٹاپک آپ نے لیا، اور اس پر بہت زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے سسٹر، اور میں یہی چاہوں گی کہ آج کا پروگرام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر ہو سکے بنسبت اس پر جو ہے وہ کویشچن آنسر ہوئے جائیں۔ کویشچن آنسر انشاءاللہ اگر ضرورت محسوس نہ ہوئی تو نہ لیں گے، لیکن کوشش یہ کریں کہ آج کے اس ٹاپک کو سنیں اور اس کی حساسیت کو سمجھا جائے۔ تو ایشا کنگریٹس، آپ کی پہلی اسٹریم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ تو چلیے میں آپ کو انٹروڈکشن کروا دوں لو جہاد کا۔ اس میں پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ لو جہاد کیا ہے، کسے کہتے ہیں، لو جہاد کا مطلب کیا ہے۔ لو جہاد کا لفظ بنانے والے بھی ہندو خود ہیں، مطلب ہندوؤں نے خود ایک نئی چیز، نیا کام لڑکا لڑکی کے لیے تیار کیا ہے جس کو لو جہاد کہا جاتا ہے، یعنی کہ بنانے والے بھی خود ہندو ہیں اور اعتراض کرنے والے بھی خود ہندو ہیں۔ مطلب اس کا ہندوؤں کے مطابق، ہندوؤں کے جاہلانہ عقل کے مطابق لو جہاد کس چیز کا نام ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہندوؤں کے مطابق کوئی مسلمان لڑکا کسی ہندو لڑکی سے پیار کرتا ہے، محبت کا دعویٰ کرتا ہے، کسی بھی طرح محبت کا دعویٰ کر کے پیار جتلا کر اس کو پھنسا لیتا ہے، سارے محبت کے دعوے وعدے کرتا ہے، پھر جب وہ لڑکی یقین کر کے پھنس جاتی ہے تو شادی کرتا ہے، اور شادی کرنے کا مقصد لڑکے کا یہ ہوتا ہے کہ زبردستی اسلام قبول کروا لے۔ یہ صرف ہندوؤں کے مطابق جو مطلب ہے وہ بتا رہی ہوں، یعنی اس لو جہاد کا مطلب یہ ہوا کہ مسلم لڑکا ہندو لڑکی سے پیار کرتا ہے، اس کو شادی کے لیے پھنساتا ہے اور پھر بلیک میل کرتا ہے کہ اسلام قبول کرو، میں نے تم سے محبت کی، شادی کی، یہ وہ سب بول کر اسے فورس کرتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے زبردستی۔ اور بلیک میل کیسے کرتا ہے مسلم لڑکا ہندو لڑکی کو؟ وہ ایسے کرتا ہے کہ اشکیا رچاتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے محبت کی خاطر شادی کر لو اور شادی کے لیے اسلام قبول کر لو، یا پھر شادی کرنے کے بعد کہتا ہے مجھ سے شادی کی ہے تو اب اسلام قبول کرو، حالانکہ وہ لڑکی اپنے مذہب ہندو کو نہیں چھوڑنا چاہ رہی تھی، صرف مسلم لڑکے سے شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ جو اس نے کر لیا، اب وہ پھنس گئی تو مسلم لڑکا زبردستی اسے اسلام قبول کرنے کا کہہ رہا ہے، اس پر ظلم زیادتی کر رہا ہے، تو اس بات کو لے کر وہ ہندو لڑکی مجبور ہے، اسے پریشان اور ذلیل کر رہا ہے مسلم لڑکا اسلام قبول کروانے کے لیے۔ جو انڈیا کے ہندو لوگ ہیں وہ اس لو جہاد کو، جب کوئی لڑکا ایسا کرتا ہے تو اسلام پر تنقید کرتے ہیں، حالانکہ اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ زبردستی قبول کروانا یا کافر ہندو عورت سے پیار کرنا اور پھر نکاح کرنا، یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اگر اس طرح کوئی لڑکا کرتا ہے تو وہ لڑکا ہی مجرم ہے، نہ کہ اسلام کا جرم ہے۔ تو کسی مسلم لڑکے کے کسی ہندو لڑکی کے ساتھ ایسے معاملے پر اس مسلم لڑکے کے جرم کو اسلام کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا ہے، اس کا جرمدار صرف وہ لڑکا ہے۔ تو اس لو کرنے والے لڑکے کو ہی پکڑا جائے اور اسلام پر الزام لگانا اس کو لے کر، یا اس لڑکے سے کہ اس گھٹیا عمل کو اسلام کے ساتھ جوڑنا ہندوؤں کا اپنا گھٹیا کھیل اور بدنام کرنے کی چال ہے، کیونکہ یہ صرف مسلم لڑکے کے کردار کو لیتے ہیں، اپنی ہندو لڑکی کے کردار کو نہیں دیکھتے کہ اس لڑکی کو کیا ضرورت تھی، اس نے مسلم سے محبت کی کیوں، اس کو اتنی ہوس لالچ کیوں پڑ گیا ایک لڑکے کا کہ اس نے مسلم چن لیا؟ کیا وہ اندھی ہے، نہ سمجھ ہے، اسے نہیں پتا کہ مسلم لڑکا ہے، میں ہندو ہوں، کافر کا اور مسلم کا گزارا کیسے ہوگا؟ وہ تو اسلام قبول کرنے کی دعوت دے گا، کیونکہ مسلم پر تو اللہ کا فرض ہے دعوت دینا، لیکن زبردستی کہیں بھی نہیں ہے۔ تو یہ زبردستی والی بات کو لے کر لگتا ہے کہ
ये तो प्रोपेगेंडा हुआ, सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर मुस्लिम लड़के से लव करती हैं, यानी कि उनको ये साबित करना है कि दुनिया में मुस्लिम हमसे लव शादी करके फिर जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते हैं और इस्लाम पर तनकीद करने का मौका देना है लोगों को। ना जाने कहां से सीख के आती हैं, कौन इनके पीछे है ये करवाने के लिए कि तुम मुस्लिम से मोहब्बत करो और फिर शर पसंद अनासिर बन जाओ और गैर मुस्लिम को मौका दो इस्लाम पर इल्जाम लगाने का। तो मैं कहती हूँ हिंदू लड़कियों से कि तुम ऐसा ना करो। क्यों करती हो किसी मुस्लिम से लव और फिर बहाने से उस लड़के के अमल को लेकर इस्लाम के खिलाफ बोलती हो और लोगों को बोलने का मौका देती हो। तुम शऊर में रहो। अफसोस है बल्कि लानत है तुम हिंदुओं के घटिया खेल पर। खुद ही बनाया इसको, खुद ही लव जिहाद का नाम दिया और फिर कसूर इस्लाम का आखिर क्यों, हालांकि लव तुम्हारी अपनी हिंदू लड़की कर रही है। तो अब इस पॉइंट की तरफ आती हूँ कि लव जिहाद होता क्यों है, रीजन क्या है, क्यों करती हैं हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों से लव या मुस्लिम लड़के हिंदू लड़की से लव करके लव जिहाद को क्यों उजागर करते हैं। वो लव जिहाद जिसको हिंदुओं ने खुद बनाया इस्लाम में और मुसलमानों में तो ये नाम था ही नहीं कभी। तो लव जिहाद होने की वजह ये है कि पब्लिक में हिंदू लड़कियों का बढ़ाना, आधे कपड़े पहनकर लड़कों को अपनी तरफ मुतवज्जे करना, किसी स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्लास कंबाइन में रहना, विदाउट एनी हेसिटेशन हर लड़के के साथ बातें करना, हंसना जैसा कि होता है और फाश लुक में सामने आना। जिस तरह वो हिंदू लड़कियां अपने स्टाइल से, एक्शन से लड़कों को अपनी तरफ खुद मुतवज्जा करती हैं, फिर लड़के तो उसकी तरफ माइल होंगे, क्योंकि हर मुस्लिम लड़का भी इतना ईमानदार और तकवा वाला नहीं होता कि वो इस तरह की लड़की को ना देखे। और शैतान भी साथ है तो मुस्लिम लड़के के ईमान को कमजोर करने के लिए उस लड़की की तरफ मुतवज्जा करेगा। अब इस तरह एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की के चाल चलन जो वो खुद उसे दिखा रही है, शो कर रही है, वो मुतासिर होगा और दोनों में बात से स्टार्ट राब्ते हो गया और लव हो गया, फिर मामला शादी तक पहुंच जाता है। एक तो इस तरह से मुतवज्जा करती है उन हिंदू लड़कियों को देखकर ये मुस्लिम लड़के मुतवज्जा होते हैं, मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं इस तलीमी निजाम की वजह से, जहां हिंदू लड़कियां जिस तरह जैसा हुलिया बनाकर जाए कॉलेज यूनिवर्सिटी वैसा ही जा सकती हैं और मोहब्बत करने की भी उन्हें कोई रोका टोकी नहीं है, वो किसी से भी कर सकती हैं। और हिंदू लड़कियों को तो गैर महरम से पर्दा और दिल बहलाने वाली बातें करने से भी मना नहीं है। इनके तो धर्म में यही राइट्स हैं या नहीं है, लेकिन लड़कियों के घर वाले और सब हिंदू इनको यही सिखाते हैं कि रह सकती हो, रहो जैसे वाश लुक में, कोई मसला नहीं है, तुम्हारी लाइफ है, एंजॉय करो। इस तरह इन पर अच्छे बुरे काम करने ना करने का कंट्रोल तो होता नहीं, फिर जहां मर्जी मुंहमारी करने करती फिरती हैं। हिंदू लड़के छोड़कर मुस्लिम से कर ले लव, इनके लिए सिर्फ लव करना और लड़के को मुतासिर करना अहम है, ना कि अपनी हिफाजत, पूरा लिबास, लड़कों से परहेज करना अहम है। एक तो इस तरह फंसाती हैं खुद मोहब्बत के इजहार करके इनको अपना आप दिखाकर, तो मुस्लिम बेशऊर लड़के समझते हैं कि हमसे मोहब्बत कर रही हैं तो शादी करके शायद सीधी राह आ जाए, इस्लाम पर चलने लगे, हम लव करके शादी कर ही लेते हैं। वो इन हिंदू लड़कियों को समझ नहीं पाते कि इन्हें सिर्फ लड़का चाहिए बाकिरदार बाहया मुस्लिम, और इस लड़के का मजहब और इस लड़के के मजहब के अहकाम पर नहीं चलना चाह रही, वो सिर्फ अपनी मोहब्बत की ख्वाहिश पूरा करना चाह रही है एक लड़के से। यही वजह है वो मुस्लिम को लव में ले आती है और मुस्लिम लड़का समझ बैठता है कि मुझसे लव करके शादी कर रही है तो इस्लाम पे आकर अपनी हिफाजत करेगी, अपनी औरत होने की पहचान जान लेगी, हया में आकर ईमान वाली बन जाएगी, इससे मेरी जिंदगी भी खुशहाल और लड़की की भी खुशहाल और अल्लाह रब्बुल इज्जत भी राजी। लेकिन ये मुस्लिम लड़के की गलत फहमी होती है। एक वजह ये थी लव जिहाद की, दूसरी वजह ये है कि कुछ इस तरह से हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों की मोहब्बत के चक्कर में पड़ती है खुद अपनी मर्जी से, भला किस तरह वो ऐसे कि जिस तरह वो आधे लिबास पहनकर खुद को बहुत ही खूबसूरत और कॉन्फिडेंट लड़की समझकर बाहर निकलती है, तो इनके अपने हिंदू लड़के इनको देखकर छेड़ते हैं। कोई बंगी चर्सी शराबी, कोई स्मोकिंग करने वाला आवारा गिरोह हिंदू लड़कों का घूम फिर रहा होता है, तो वो इन हिंदू लड़कियों को बेगैरती की निगाह से देखकर करीब आकर कुछ भी जबान से बेहुदा अल्फाज बोलता है या इन लड़कियों के पीछे लगकर इनको छेड़ता, तंग करता है, रास्ता रोकता है, टच करने की कोशिश करता है। जब इनकी बहना यानी आधे लिबास वाली हालत देखकर इनके अपने हिंदू लड़के इनकी तजलील करते हैं तो फिर ये चिल्लाती हैं, चीखती हैं। वहां कोई मुस्लिम खड़ा देख रहा हो तो वो बस औरत समझकर गैरत खाकर इसकी हिफाजत को दौड़ता है, इन जानवरों से इनको बचाकर बाहिफाजत इनके घरों तक पहुंचाता है। तो ये खुद इससे मुतासिर होती है, ड्रामा फिल्मों वाली एक्टिंग, इससे नंबर ले लिया, फिर मोहब्बत शुरू, फिर वो मुस्लिम लड़का फिर से वही सोच लेता है कि शायद वो मुझे मुस्लिम हूँ, इसकी इज्जत की है इसलिए पसंद करके लव कर रही है। लेकिन इस लड़की की नीयत सिर्फ उस लड़के से लव की ही होती है, वो चाहती है कि मेरी हिफाजत भी करे, मुझसे मोहब्बत भी करे और मुझे इस तरह जिस तरह का मैं हिंदुइज्म में रहकर लाइफ स्टाइल जी रही थी वैसे ही जीने दे, क्योंकि इनके हिंदू धर्म में तो प्यार मोहब्बत जायज है, जैसे कि कृष्णा और गोपियों का तरीका कार था। खुद कृष्णा ने कपड़े चुरा लिए गोपियों के, तो खुशी खुशी गोपियां इससे प्यार करती थी अपनी मर्जी से खुद जाकर, तो कृष्णा गोपियां रास लीला रचाते। तो अब ये हिंदू लड़कियां भी खुद मुस्लिम लड़कों से लव रचाती हैं, आशिकी करती हैं, बेबस और बेचैन है लड़के के लिए, बस प्यार करना है, जो मिल रहा है मुस्लिम ही है, फिर क्या हुआ। हिंदू लड़की कहती है मैंने तो प्यार किया है, लव किया है, मुझे बस ये मिल जाए। की तरह जैसे वो कृष्णा के पास जाती, ये थी एक वजह इनकी। तो करती खुद है ये हिंदू लड़कियां शादी लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम लड़के से, तो इल्जाम इस्लाम पर लगाती हैं। बाद में इस्लाम कबूल ना करके जब लड़का इस्लाम का कहता है तो बिगड़ जाती हैं कि हम तो फंस गए, हमें तो फाश जिंदगी आवारा बाहर घूमना था, शॉर्ट ड्रेस पहनकर गैर मर्मों के सामने निकलना था। मुस्लिम तो नहीं निकलने देगा इस तरह, क्योंकि मुस्लिम की गैरत कैसे गवारा करेगी। मुस्लिम तो नहीं चाहता कि औरत इस तरह बहना शॉर्ट ड्रेस में तो क्या बल्कि बेपर्दा भी बाहर ना निकले। तब आपस में घरेलू झगड़े शुरू
شروع ہوتے ہیں تو گھر بستا ہی نہیں، الگ ہو جاتے ہیں، پھر شور مچاتی ہیں، چلاتی ہیں، اپنے کیا بھر نہیں سکتی تو کرتی کیوں ہے لو کسی مسلم سے، اور لو کے بعد شادی کر کے جب ان کی حسرت پوری ہو جاتی ہے تو پھر کیوں چیختی ہیں؟ اسلام پر تو رہنا نہیں تھا انہیں ایک مسلم لڑکے کے ساتھ، تو پھر جب الگ ہو رہی ہو جاتی ہو کہ ہمیں طلاق دے دی اسلام کے قبول نہ کرنے پر، تو پھر طلاق کو لے کر کیوں ہنگامہ کرتی ہو؟ حالانکہ تم تو جانتی ہوتی ہو، تم ہندو لڑکیوں کو تو پہلے ہی ڈرا دیا جاتا ہے کہ اسلام میں طلاق ہے، مسلم طلاق دے دیتے ہیں کافر عورت کو، تو عزت سے رہا کرو نا، مسلم کے لو میں کیوں آتی ہو؟ اور اگر آتی ہو لو کی خواہش پوری کرنے، وہ تو ہو جاتی ہے تمہاری فلم بن جاتی ہے پیار والی، اس کے بعد رو پیٹ کر یا چلا کر اسلام کے خلاف لوگوں کو بولنے پر کیوں اکساتی ہو؟ یاد رکھو نا پھر کہ تم نے اس مسلم سے شادی کی بغیر اسلام قبول کیے تو تمہیں وہ ساتھ نہیں رکھ سکے گا، طلاق ہوگی، اور کافر لڑکی کو طلاق دینا مسلمان کا فرض ہے۔ اب چلتے ہیں مین ٹاپک کی طرف کہ اسلام میں کیا حکم ہے مسلم لڑکی کے لیے، وہ کافر عورت سے لو وہ شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں، اگر کر سکتا ہے تو کیا شرائط اور لو جہاد، یعنی مسلم لڑکا اگر ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اس پر اسلام کے خلاف کیوں نہیں بولا جا سکتا؟ وہ ایک مسلم لڑکے کا قصور ہے یا مسلم لڑکے کے اس قصور میں اسلام کا بھی کوئی حکم ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے؟ اگر اسلام میں ایسا کرنے کا حکم نہیں تو پھر اسلام کے خلاف کیوں بولا جاتا ہے؟ تو میں یہ سب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک مسلم لڑکے کو کس طرح نکاح کا حکم دیتے ہیں اور کس لڑکی سے کرنے کا حکم دیتے ہیں آیات کے حوالے سے بتاتی ہوں، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 221، تو اس آیت میں بت پرست مشرکہ عورتوں سے نکاح کی حرمت بیان ہو رہی ہے۔ یہ آیت ہر ایک مشرکہ عورت سے نکاح کو ممنوع قرار دیتی ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ابن جریر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی قسم کی عورتوں سے نکاح کرنے کو ناجائز قرار دیا سوائے ایماندار ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کے، خصوصاً ان عورتوں سے جو کسی دوسرے مذہب کی پابند ہو۔ حضرت امام احمد سے بھی اس آیت کا مطلب پوچھا جاتا تو آپ فرماتے ہیں مراد جس سے عرب کی وہ مشرکہ عورتیں جو بت پرست تھی۔ اس آیت کی اس بات سے جو بیان ہو رہی ہے کہ مشرکہ عورت سے نکاح یعنی بت پرست سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، تو میں کہتی ہوں کہ یہ ہندو لڑکی بت پرست ہے، تو اللہ اور اسلام نے تو مسلم لڑکے کو مشرک بت پرست لڑکی سے اجازت نہیں دی، روک دیا، منع فرما دیا، تو ایک مسلم لڑکے کا نکاح جو لو جہاد میں وہ کسی ہندو لڑکی سے کرتا ہے اب اسے تو وہ لڑکا ہی مجرم ہے، اس پر اسلام کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی، کوئی وجہ ہی نہیں کہ مسلم لڑکے کے جرم پر اسلام کو الزام دیا جائے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ایمان والی غلام عورت شرک کرنے والی آزاد عورت سے اچھی ہے۔ یہ فرمان عبداللہ بن رواحہ کے بارے نازل ہوتا ہے، ان کی سیاہ رنگ کی غلام لڑکی تھی تو ایک مرتبہ غصہ میں آ کر اسے تھپڑ مار دیا تھا، پھر گھبرائے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس کا کیا خیال؟ وہ روزے رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اچھی طرح وضو کرتی ہے، اللہ کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ پھر تو وہ ایماندار ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ قسم اس اللہ کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اسے آزاد کر دوں گا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے نکاح بھی کر لوں گا۔ چنانچہ یہی کیا جس پر بعض مسلمانوں نے تانا دیا، وہ چاہتے تھے کہ مشرکوں میں ان کا نکاح کرا دیں اور اپنی لڑکیاں بھی ان کو دے دیں تاکہ شرافت نسب قائم رہے، تو اس پر یہ آیت اتری، یہ فرمان نازل ہوا کہ مشرک آزاد عورتوں سے مسلمان غلام عورت 1000 درجہ بہتر ہے۔ بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا 4 باتیں دیکھ کر عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، ایک تو مال، دوسری حسب نسب، تیسرے جمال و خوبصورتی، چوتھے دین، تو تم دینداری دیکھا کرو۔ دنیا کل کی کل متاع ہے، متاع دنیا میں سب سے افضل چیز نیک عورت ہے۔ گویا اب مشرک اور مسلم کا نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا، قرآن نے منع کر دیا اللہ کے حکم سے، تو اب اگر مسلم لڑکا لو جہاد میں ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے تو یہ ان دونوں کا میل جول، صحبت، محبت، دنیا حفاظ، دنیا اور دنیا طلبی اور دنیا کا آخرت پر ترجیح دینا ہے جس کا انجام جہنم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو سب بتا دیا، پھر بھی اگر کوئی کم علم مسلم لڑکا لو جہاد میں ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے تو وہ لڑکا خود مجرم ہے، اسلام کا اس میں کوئی دخل نہیں، اور نہ کسی کو حق ہے کہ وہ کسی مجرم کو لے کر اسلام پر تنقید کرے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت سورہ الممتنہ کی آیت نمبر 10 اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ مسلمان عورتیں کافروں پر اور کافر عورتیں مسلمان مردوں پر حلال نہیں ہیں۔ اس آیت نے بھی کافر عورتوں اور مومن مرد کے رشتہ کو حرام قرار دیا، کافر عورت سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو میں کہتی ہوں یہ لو جہاد میں جو مسلم لڑکا اور ہندو لڑکی کا پیار ہے یہ کیسے جائز ہے؟ جب نکاح حرام ہے تو پھر یہ لڑکے کا جرم ہی ہے، وہ ہندو لڑکی کے چکر میں اپنے رب کے احکام بھول چکا ہے، لہذا اسلام کی تذلیل نہیں اس لڑکے کی تذلیل کی جائے اور اس ہندو لڑکی کی تذلیل کی جائے کہ تم نے موقع کیوں دیا ایسا کرنے کا ایک مسلم لڑکے کو۔ اس طرح اس الممتنہ کی اس آیت نمبر 10 کی تفسیر میں یہ بھی ہے کہ جب ارشاد ہوا کہ مسلمانوں تم پر کافرہ عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھنا حرام ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ کی پہلے سے 2 بیویاں کافرہ تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ نے یہ حکم سنتے ہی اپنی دونوں کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی۔ تو اب جبکہ مسلمان کی اگر کافرہ بیوی ہے جو حکم الہی سے پہلے تھی وہ بھی اسلام قبول نہ کرے تو اس کو بھی اللہ کا حکم ہے کہ طلاق دے دو، تو پھر کس کافرہ ہندو لڑکی سے لو جہاد کرنا اور پھر شادی
करके उसे साथ रखना एक मुस्लिम के बस की बात नहीं, तलाक होगी। और हाँ, एक और जगह फरमाया गया कि तुम्हें अगर किसी काफिर औरत से निकाह करना है तो इजाजत है, बशर्त ये कि निकाह से पहले उसको इस्लाम कबूल करने का हुक्म दो। अगर मर्जी से वो इस्लाम कबूल कर ले तो पसंदीदा अमल है। इस्लाम में फिर मुस्लिम लड़का और काफिर लड़की से शादी कर सकता है जब निकाह से पहले वो ईमान ले आए। अगर वो ईमान नहीं ले आई तो मामला खत्म करें और अपने रब के हुक्म के मुताबिक अपने मजहब की मुस्लिम औरत से निकाह करें। तो हिंदुओं सुनो, अपनी हिंदू लड़कियों पर कंट्रोल करो। जब वो इस्लाम कबूल नहीं कर सकती तो मुस्लिम लड़के को शादी के लिए क्यों चुनती हैं? और इस्लाम में जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने की किसी सूरत भी इजाजत नहीं, बल्कि कैद में भी अगर काफिरों की औरतें आ जाए तो सूरतुल मुमतना की आयत नंबर 10 में जो अभी मैंने बयान किया उसी में हुक्म हुआ कि काफिरों की औरतें जो कैद में आ जाए तो अगर वो मुस्लिम हो जाए, ईमान ले आए अपनी मर्जी से, तो उनके मालिक काफिरों को कुछ माल देकर औरतों को मुसलमान रख ले। और हाँ, अगर वो औरतें ईमान ना ले आए तो काफिर ही रहे तो जबरदस्ती उनसे इस्लाम कबूल नहीं करवाना, बल्कि उनको वापस काफिरों के पास पहुंचा दिया जाए। तो ये बात साबित करती है कि इस्लाम में तो जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने का हुक्म है ही नहीं किसी मुस्लिम मर्द को कि वो काफिर औरत से जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाए। सिर्फ और सिर्फ दावत देना फर्ज है। इस्लाम कबूल करने की कोई कर ले तो दुनिया आखिरत कामयाब हो गई, इसकी नहीं तो फिर कोई जोर नहीं ना इस्लाम का, ना किसी मुस्लिम का किसी काफिर को इस्लाम पर लाने के लिए। जी, तो अब मैं ये बात कहना चाहूंगी कि ये लव जिहाद सिर्फ इंडिया में क्यों होता है? मुस्लिम तो बाकी दुनिया में हर जगह रहते हैं, बाकी हर जगह ये लव जिहाद का फितना क्यों नहीं है? अगर तो बात मुस्लिम किया तो मुस्लिम बाकी जगह क्यों नहीं करते ये लव किसी गैर मुस्लिम से? और किसी गैर मुस्लिम से बाकी ममालिक में कोई भी मुस्लिम लव करके निकाह क्यों नहीं करता तब तक जब तक गैर मुस्लिम लड़की अपनी मर्जी से दावत इस्लाम कबूल करके इस्लाम पर ईमान नहीं ले आती? सिर्फ इंडिया में ही क्यों सिर्फ लव जिहाद हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के का ही क्यों? और हाँ, अगर जायज होता तो बाकी मुस्लिम भी बाकी दुनिया में जहां जहां रहते हैं वहां भी करते, वहां भी होता। ये सिर्फ हिंदुओं में रहते हुए मुसलमानों की तरफ से ही क्यों? और हिंदू लड़की से मुस्लिम लड़के के लव जिहाद पर सिर्फ इंडिया में ही क्यों मुसलमानों पर इल्जाम और बदनाम किया जाता है? इसका मतलब हिंदू लड़की खुद कसूरवार है। इंडिया के मुस्लिम लड़कों से खुद लव का चक्कर करती है, जब तक दिल करता साथ रहती है और जब दिल उकताता कोई भी बहाना करके अलग हो जाती है। ये कोई साजिश और प्रोपेगेंडा है खुद हिंदू लड़कियों का, जैसा कि इन हिंदुओं के पंडित कुछ मुस्लिम लड़कियों को कह रहे होते हैं कि मुसलमानों से शादी ना करो, हिंदू लड़कों से शादी करो, तुम्हें तलाक का डर नहीं होगा। इसी तरह शायद ये लड़कियां भी पूरे प्रोपेगेंडे से मुस्लिम लड़कों से लव करती हैं। जब तक बात शादी तक की आती है फिर बाद में वो रह नहीं सकती तो बहाना करती है कि जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाना चाहता था, मैंने नहीं किया तो मुझे घर से निकाल दिया, ये वो। तो इस पर एक सवाल मीडिया से बनता है कि मीडिया इस तरह की लड़की जो ये बातें कर रही होती है उसकी बातों को और उस लड़की को ऐसे दिखाते हैं जैसे वो आला दर्जे की मजलूम और शरीफ थी और उसके साथ मुस्लिम लड़के ने ज्यादती कर दी। और फिर मीडिया वाले उसको इस तरह पेश करते हैं कि जैसे वो लड़की जो कुछ बता रही है वो सब सच है। मीडिया वाले उसके घर रहते थे, सब कुछ आंखों से देखते थे, इस तरह इस लड़की के हक में चीखते और इस्लाम को बदनाम करते हैं जैसे कि इस्लाम ने ये सब जायज किया हो, हालांकि इस्लाम में कुछ भी ऐसा नहीं है। और ये मीडिया वाले जब कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की को बहलाकर ले जाता है, उसका ईमान खत्म करता है और अपने मजहब पर लगा लेता है, तब तो इतनी गंदगी फितना नहीं फैलाते बल्कि छुपा लेते हैं, दबा देते हैं। और जब एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से लड़ झगड़ कर घर छोड़कर आती है तो इसकी बातों पर यकीन करते हैं कि वाकई मुस्लिम लड़के ने जबरदस्ती इस्लाम कबूल ना करने पर लड़की को छोड़ा है, ये तलाक दिया। मीडिया ने कभी ताल्लुक टूटने की असल वजह जान लेने की कोशिश क्यों नहीं की? मीडिया वालों को क्या तस्दीक कि वो लड़की जो कह रही है मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया तो मुझे मार पीट कर मुस्लिम लड़के ने निकाल फेंका, ये सच है या अलग होने की मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की जिंदगी इस्लाम के अलावा कुछ और इख्तलाफात थे? अंदर की वजह जानने के आखिर मामला यहाँ तक क्यों आया? वाकया ही इस्लाम के लिए फोर्स करता था लड़का या हिंदू लड़की की अपनी कोई और जाती वजह थी इस लड़के के साथ इख्तिलाफ की जिस पर दोनों को अलग होना पड़ा? तो मीडिया वाले हया करें, गौर फिक्र करें अपनी हिंदू लड़कियों पर भी। जी, अब आती हूँ इन मुस्लिम लड़कों की तरफ जो आशिक होते हैं इन हिंदू लड़कियों पर, उनके साथ मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्या तुम्हारा मकसद हयात यही एक हिंदू लड़की थी? भाइयों होश करो, अपने रब से किए अहद को क्यों भूल गए हो? जो अहद अल्लाह रब्बुल इज्जत से करके आए हो कि हम पूरा करेंगे और उसके पूरा करने पर अल्लाह ताला ने जो अहद वफा किया है हम मुस्लिम लोगों से मैं अजर अजीम अता करूंगा। तो एक लड़की जो शॉर्ट ड्रेस में खुलेआम बाजारों में, कालजो पार्क और होटल में हर गैर महरम के आमने सामने बगैर पर्दे के रहती है, जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकती, जिसको ये नहीं पता कि एक गधी की तरह कि उसको अपना कितना जिस्म छुपाना है कपड़े से, कितना बाहर रखना है, वो बेशऊर लड़की तुमसे मोहब्बत करके तुम्हें क्या इज्जत देगी? वो तुम्हारा ईमान ही कमजोर करेगी और तुम्हारी कम अकली और इस जहलाना मोहब्बत पर इस्लाम को बदनाम करेगी। तुम क्यों मुस्लिम होकर गैरत नहीं करते? तुम्हारे लिए तो हुक्म आंखों को झुकाकर चलने का है, तकवा का है। तुम्हें तो फहाश चीजों को देखने से मना किया गया है, तो फिर तुम मुस्लिम इन हिंदू लड़कियों को क्यों देखकर इनसे मोहब्बत करते हो? इनको तो हया नहीं, वो तो फिरती हैं सरेआम। कम से कम तुम मुस्लिम लड़के तो अपनी अलग से पहचान रखो, तुम तो अपने ईमान का बचाव करो। अगर किसी मुस्लिम लड़के को ज्यादा ही कोई मसला है, इस कदर मोहब्बत हो चुकी है कि किसी हिंदू लड़की से कि वो डिप्रेशन में है, तो चीख ले, चिल्ला ले, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी बेचैनी का ट्रीटमेंट करे या फिर किसी मुस्लिम लड़की से शादी करे, सब्र कर जाए। माओ का दूध पिया है, बचपन से कलमा पड़ा है, तो भरम रखो अपने ईमान का, अपने रब का। एक लड़की की खातिर क्यों अपना ईमान बर्बाद करते हो? दुनिया में तुम्हारी तजलील होती
होती है, तुम गुनाहगार भी होते हो। क्या मिलता है तुम लड़कों को? एक गैर मुस्लिम हिंदू लड़की जिसके साथ ऐसा ताल्लुक हराम है, उसे मोहब्बत करके। और मैं हिंदू लड़कियों से भी कहती हूँ कि गैरत करो, अगर माँ का दूध पिए तुम मुस्लिम लड़कों का ईमान खराब मत करो। अगर इस्लाम कबूल नहीं कर सकती तो मोहब्बत का चक्कर भी छोड़ दो। मैं कहती हूँ अगर एक तरफ मुस्लिम लड़के का जुर्म है कि वो क्यों मौका देता है तुम्हें तुम्हारे साथ मिलकर लव का, तो कोई मुस्लिम लड़का खुदकशी करे, चीखे चिल्लाए, तुम्हारी मोहब्बत में मरता मर भी जाए, तुम उसकी मोहब्बत में ना आना। हिंदू लड़कियों अपने मजहब के लड़कों को अपना मुहाफिज बनाओ। जिस लड़के की इबादत मजहब तुम्हें पसंद नहीं, तुम उससे लव करके शादी क्यों करती हो? तुम्हें सिर्फ मुस्लिम लड़का चाहिए सीधी रात, तो तुम्हें आना नहीं, तो फिर तुम हिंदू लड़कियां जो वो अपने लिए अपने मजहब के लड़के पसंद किया करो। हाँ, अगर अभी पूरी देखें और पूरा इसका कॉन्सेप्ट देखें कि हमें कहीं और नहीं नजर आता और हमें खास जगह पे नजर आता है, खास मुल्क में नजर आता है, तो ये एक बाकायदा प्रोपेगेंडा है और इसके लिए काम हो रहा है। और अगर ये एक पूरा सिलसिला है, एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं ना, एक काम पूरा चला और फिर उसको एक नाम दे दिया गया जिसका ताल्लुक इस्लाम से जोड़ दिया गया, क्योंकि इस्लाम में लफ्ज है जिहाद, और जिहाद के क्या मायने हैं और जिहाद की क्या किस्में हैं और जिहाद किस तरह काम करता है, वो बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर मीडिया के जरिए, लोगों के जरिए उसको किस तरह से गोल मोल करके, जलेबियां बना के, तोड़ मरोड़ के पेश किया गया कि देखें ये लव जिहाद है। अगर मुसलमान लड़का है, किसी लड़की से वो हिंदू से शादी कर रहा है और फिर उसको बाद में देखें किस तरह से जबरदस्ती मुसलमान कर रहा होता है, तो सबसे पहले एक तो जिसे हम कहते हैं ना नाअहली और कम इल्मी मुसलमान मर्दों की भी कहूंगी मैं, लड़कों की भी कहूंगी इस लिहाज से कि वो जाल में फंस जाते हैं और वो जिसे कहा जाता है वो अंधे हो जाते हैं, या छोटी सी बस जो अट्रैक्शन नजर आती है तो वो उसको देख कर फिर वो बढ़ जाते हैं उसी के आगे। और फिर होता क्या है कि वो इतने ज्यादा आगे हो जाते हैं, वो शादी तक बात पहुंच जाती है। चले शादी तो अब बात ही खत्म यहाँ पर हो गई कि इस्लाम में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, आप बुत परस्त या आप मुशरिक लोगों से शादी नहीं कर सकते, बात वहीं पे खत्म। जब उनपे ये रिस्ट्रिक्शन लगती है और वो मोहब्बत में अंधे हुए होते हैं तो वो फिर बात करते हैं कि हाँ भाई मुसलमान हो जाए लड़की, तो उसको नाम क्या दिया गया कि ये देखिए लव जिहाद हो रहा है और ये यहाँ के मुसलमान लड़के कर रहे हैं, और इस तरह से फंसा के और इस तरह से मतलब गलत तरीके से उसे बताया जा रहा है। तो इसका समझना भी बहुत जरूरी है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से शुरू हुआ है और ये कहाँ लाया गया और किस तरह से इसे पेश किया जा रहा है और इस पे अमल भी किस तरह किया जा रहा है। तो इसकी रूट कॉज जो होती है उसको समझना भी बहुत जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या अवामिल हैं, क्या साजिशें हैं जिसकी वजह से एक इंसान फंसता जाता है। इंसान क्या, फिर वो पूरा कपल ही फंसता है और वो भी नहीं समझ पाता, क्योंकि जाहिर है उनकी मैं तरबियत पे ही बात कहूंगी कि लड़कियों की तरबियत कुछ इस तरह से कि वो भी नहीं समझ रही कि हाँ क्या करना है आगे, और फिर लड़के भी उस चीज को, उसके जो खास पहलू है उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो लव जिहाद दिया है। सबसे पहले तो इस पे मैं हंस सकती हूँ और वाकई हंसना बनता है कि आप खुद से एक नया कॉन्सेप्ट लाए, खुद से आपने बना भी लिया और उसको आप बता भी रहे हैं कि ये क्योंकि है इस्लाम में, जबकि इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जी सिस्टर। जी बिल्कुल ठीक कहा, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इस लव जिहाद का फायदा और नुकसान किसको है और क्या वजह है कि हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों को जो है वो पसंद करती हैं। ईशा सिस्टर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर तो दिया है, लेकिन मैं और सिस्टर से भी जो है इसकी राय लेना चाहूंगी, अगर कोई बात करना चाहे इस बारे में कि आखिर क्या किसको फायदा हो सकता है या किसका फायदा या नुकसान है इस लव जिहाद के चक्कर में, इस लव जिहाद को जो इजाद किया गया है और इंडिया में ही क्यों इसको इतना हाईलाइट किया गया है और देशों में तो नहीं ये चीजें, इंडिया में ही क्यों। माशाल्लाह से अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से ईशा सिस्टर ने सारे पॉइंट्स बड़े अच्छे से बता दिए हैं। मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगी कि इन लोगों की ये गलत फहमी होती है कि ये जो लव जिहाद है ये हमारे किताबों में कहा गया है इसलिए हम कहते हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल करती हूँ कि अगर ये हमारे किताबों में अल्लाह ताला ने हमें बताया होता है ऐसा करने को, तो ये चीज़ सारी दुनिया में होती। जैसा कि ईशा सिस्टर ने बहुत अच्छे से समझाया, मैं फिर भी आपसे और एक बार सवाल करना चाहती हूँ कि अगर ये चीज़ हमारे किताबों में होती, ये चीज़ हमें अल्लाह ताला ने बताई होती, तो ये चीज़ तमाम दुनिया में होती, पूरी दुनिया इसको फॉलो कर रही होती। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही क्यों है? क्योंकि ये एक खुद इन लोगों का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है, इसलिए ये सिर्फ इंडिया में है। और मैं और एक बात कहना चाहूँगी कि यूट्यूब पर एक नहीं बहुत सारे स्वामी हैं जो कहते हैं मुसलमान लड़कियों से कि तुम लोग मुस्लिम लड़कों से शादी मत करो क्योंकि तुम्हें तलाक का डर होता है, हिंदू लड़कों से शादी कर लोगे तो तुम्हें तलाक का डर नहीं होगा। तो मैं उन बहनों से यानी उन हिंदू बहनों से पूछना चाहती हूँ, तुम अपना मजहब छोड़कर हम तलाक के जिस मजहब में तलाक का डर होता है उस मजहब में क्यों शादी करती हो? उस मजहब के लड़के के साथ क्यों लव करती हो, जबकि तुम्हें पता है कि हमारे मजहब में तलाक दिया जाता है?
और मैं उन स्वामियों से भी कहती हूँ जो ये मुस्लिम लड़कियों को बहका कर कहते हैं कि तुम हिंदू लड़कों से शादी करो, पहले तुम अपनी हिंदू लड़कियों को समझाओ कि क्या सही है क्या गलत है। एक मिनट अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आमिर भाई स्टेज पर आए हुए हैं, पहले उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है मेरी आवाज आ रही होगी, पहले तो ये बता दें। जी बिल्कुल, वेलकम। बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। सिस्टर्स, एक बार फिर आपने बड़ा शानदार टॉपिक जो है उसका इंतखाब किया और अभी तक की जो गुफ्तगू है वो बड़ी जानदार है। और मुझे ईशा रॉय सिस्टर हमारी के जिस पॉइंट ने मजबूर किया ज्वाइन करने के लिए, वरना मैं चाह रहा था मैं आप लोगों को सुनूं, क्योंकि ये मुद्दा चूंकि मुस्लिम महिलाओं और हिंदू महिलाओं के बीच एक कशमकश के हवाले से है जो कि क्रिएट की गई है, एक टग ऑफ वॉर। वो किस तरह है उसको तो हम लेते हैं, मगर ये है कि जो पॉइंट उन्होंने रखा था बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैंने 1 महीने पहले 11 मिनट और 36 सेकंड का एक क्लिप डाला था। अनिल यादव जो है न्यूज़ नेशन का पत्रकार था इंडिया का, उसने तकरीबन 10 से 12 साल जो है न्यूज़ नेशन के अंदर काम किया और जब उसने रिजाइन किया जिस वजह से, उसने कुछ वजूहात बयान की। आज के टॉपिक से रिलेटेड जो जुमला कहा गया था जिस पर ईशा रॉय सिस्टर ने बड़ा जबरदस्त एक राजनीतिक जो षड्यंत्र है वो दिखाया गया है कि किस तरीके से इस्लाम को मलाइन करने के लिए वो पॉइंट रखा जाता है। ये जरा सुनिएगा, मैं आपको ऑडियो सुना देता हूँ, जरा सुने। ये मनोज गैरोला हर मीटिंग में इन्वॉल्व होता है मॉर्निंग में, सुबह। ये एडिटर इन चीफ है, ये हर मीटिंग में रहता है। बलरामपुर में घटना हुई थी, एक मुस्लिम लड़के पर आरोप लगा था हिंदू लड़के के साथ बलात्कार करने का। मैं उसकी रिपोर्टिंग के लिए गया था, मैंने बोला वहां पाया वो प्रेम प्रसंग का मामला था। मैंने कहा सर इसमें ऐसा कोई लव जिहाद हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये एक प्रेम प्रसंग का मामला है, दोनों का आपस में बहुत पुराना मसला था, दोनों बहुत इन्वॉल्व थे आपस में। तो मनोज गैरोला मुझे कहता है कि तुम अपनी जासूसी पत्रकारिता अपने पास रखो, चैनल जैसे चल रहा है उसको चलने दो, और उसके ये अल्फाज थे। तो ये डिसाइड करते हैं, देखिए ये चैनल तो कहाँ से चल रहा है। ठीक है जी। बलराम के अंदर एक वाकया होता है, एक मुसलमान लड़के के ऊपर यह आरोप लगता है कि उसने एक हिंदू महिला का बलात्कार किया है। हाँ जी, हिंदू महिला का बलात्कार किया है। अनिल यादव जो उस केस को कवर कर रहा था, उसने आकर एडिटर इन चीफ को यह चीज कही कि जनाब श्रीमन, ये लव जिहाद का मसला नहीं है, इसको मीडिया के ऊपर लव जिहाद के तौर पर मत दिखाएं। उस लड़के और लड़की का पुराना संबंध था, वो एक दूसरे से प्यार करते थे, बाद में जब मसला बना तो उन्होंने रेप का केस डाल दिया। जिस तरह ईशा रॉय सिस्टर ने ये बात रखी कि जब वो लड़का हाथ से निकलने लगता है, ये आरोप लगा देते हैं कि जी हमें जबरदस्ती जो है वो इस्लाम कबूल करवाना चाह रहे थे, हम हमारे साथ लव जिहाद कर रहे थे ताकि उसको मीडिया के अंदर हाइप मिल सके। इसी तरह पीछे शाहरुख का केस आया था जिसको सारे नटुनियों ने उठाकर केस बनाया। हम कंडेम करते हैं उस मर्डर को जो मासूम लड़की का हुआ, मगर उसको लव जिहाद का नाम देकर इस्लाम को मलाइन करने की, डीमेन करने की और डीफेम करने की कोशिश की गई। मैं ये पॉइंट रखना चाहता था इस हवाले से कि ये इंडिया का यादव है, अनिल यादव पत्रकार है, उसने ये क्या बयान दिया था। एक तो ये चीज मैं रखना चाहता था। मैं चाह रहा हूँ सिस्टर्स को मैं ज्यादा सुनूं, तो मैं मुख्तसर सी एक बात रख देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम इस हकीकत के, इस फैक्ट के यहाँ पर मीडिया की गेम चल रही है, मगर एक हकीकत यहाँ पर ज़हन नशीर रहना बहुत जरूरी है जो कि इनके नारासिंगा जो है उसने बयान की थी। वो ऑडियो भी मैं आज पब्लिक को सुनाना चाहता हूँ। गो कि हम बार बार वो चीज़ सुन चुके हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको बार बार सुना जाए तो वो ताज़ा रहती हैं, फ्रेश रहती हैं। तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि उसने हिंदू पुरुष के बारे में क्या कहा था और मुसलमानों के जो लड़के हैं, मर्द, उनके बारे में क्या कहा। और औरत की बर्बादी के केवल औरतें दोषी नहीं है, हमारा हिजड़ापन, हमारी नपुंसकता, हमारी कमजोरी भी दोषी है। हिंदुओं, तो मुसलमान से वो दोस्ती कर रही है, उसकी केवल वो अकेली गर्लफ्रेंड नहीं है, उसकी और भी कई गर्लफ्रेंड है, लेकिन फिर भी वो दोस्ती कर लेती है क्योंकि महिलाएं मजबूत मर्दों को पसंद करती हैं। महिलाएं कभी भी कमजोर मर्दों को पसंद नहीं करती। पता नहीं हम हिंदू इस सत्य को क्यों नहीं मानना चाहते। ये सुनाकर मैं इस पोल को भी अब एक्सपोज कर रहा हूं इसी की जुबान से, इस एंगल से हम देख लेते हैं। लव जिहाद का जो इल्जाम प्रोपेगेंडा किया जा रहा था इंडिया के सारे गोदी मीडिया की तरफ से, वो पोल इसके अपने खुद के, इस पंडित के और इस कट्टर हिंदू के मुंह से निकल गया कि महिलाएं जो मुसलमान मर्दों की तरफ लपक रही हैं, उनसे मोहब्बत कर रही हैं, उसके पीछे वजह इस्लाम या आइडियोलॉजी तो बाद की बात है, उससे पहले हिंदुओं की नपुंसकता है। अब ये खुद कह रहे हैं। अब अगर कोई महिला मुसलमान के प्यार में पड़ती है, वो चाहे किसी वजह से भी पड़ रही है, अभी तो उसको कंडेम कर रहे हैं हम कि क्या करना चाहिए, जैसे ईशा रॉय सिस्टर ने भी कहा कि हमें क्या बैलेंस करना है सोसाइटी के अंदर। मगर आप ये समझ लें कि वो महिला इसलिए नहीं आ रही कि वो लड़का उसको घसीट कर लेके जा रहा है कि इस्लाम कबूल करवाऊंगा, बल्कि उस लड़की को जरूरत है क्योंकि तुम्हारे पास मर्द खत्म हो चुके हुए हैं। और ये एक नेचुरल बात है, मैं आपको सही बता रहा हूं।
उसने बिल्कुल ठीक कहा, एक महिला सख्त मर्द को, ऐसा मर्द जो उसका दिफा कर सके, उसकी हर किस्म की ख्वाहिश को पूरा कर सके, ये एक नेचुरल बात है, इसमें कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है, ये खुली बात है। तो ऐसी सूरत में कोई भी दुनिया की महिला होगी वो यही चाहेगी कि मेरा जो हस्बैंड हो, मेरा खामंद हो, मेरा लाइफ पार्टनर हो, वो आसाबी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर, मुआशरती तौर पर, समाजी तौर पर, अखलाकी तौर पर, नफ्सियाती मजबूत हो। वो ये तकाजा करती है, उसमें उसकी गलती नहीं है। इसीलिए उसने कहा औरतों का दोष नहीं है, उन मर्दों का दोष है जो नपुंसक हैं। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं एक अंदर डीप, वो ये है एनालिसिस कि मुसलमान मर्दों के अंदर ये सख्ती क्यों आती है, मुसलमान मर्दों के अंदर ये जलाल क्यों है, मुसलमान मर्दों के अंदर ये कॉन्फिडेंस क्यों है, वो इतने स्ट्रांग क्यों है सोशली, उसके पीछे वजह क्या है। मैं फिजिकली बात नहीं कर रहा, नीचे कुछ लोग लगे हैं बीफ अपनी फेवरेट डिशेस का नाम लोगों ने लेना शुरू कर दिया, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं साइकोलॉजिकली और आइडियोलॉजिकली बात करने लगा हूं। याद रखें, तौहीद आपकी तबीयत के ऊपर, आपकी नेचर के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करती है तौहीद। जब आप एक खुदा के मानने वाले बनते हैं और आप में सेल्फ सेंट्रलाइजेशन आ जाती है, मतलब आपको पता चल जाता है कि आपकी आइडियोलॉजी के अंदर एक सेंट्रलाइजेशन है, मरकजियत है, नुक्ता वहदत है, सिंगुलैरिटी है, यूनिटी है, इत्तेहाद है, आप में एतमाद पैदा होता है। इसीलिए आप देख लें कि मुसलमान अकेला भी खड़ा होगा, वो मुतमईन होगा, मुअतमिद होगा, एतमाद होगा उसको। उसकी वजह पता क्या है? क्योंकि उसके अंदर तौहीद की शम्मा जलती है। ये वो शम्मा है कि जो फारस की कभी ना बुझने वाली आग को खा गई थी। ये वो चिंगारी है जो घटाटोप अंधेरों के अंदर उम्मीद की ऐसी किरण बनती है कि तारीकियां कितने भी लंबे अरसे पर मोहित हों, मगर एक छोटी सी टिमटिमाती हुई तौहीद की चिंगारी उस इंसान को सदियों तक पुरइत्मीनान उसको कर देती है। ये उसके अंदर ये चीज है, ये हकीकत है। तो जिनके दिलों के अंदर, मुसलमानों के दिलों के अंदर तौहीद है, उनके अंदर एतमाद है, तो यकीनन कोई भी लड़की उनको देखेगी, हिंदू लड़की भी, तो वो यही कहेगी। अब मैं आपको एक बड़ी मिसाल दे देता हूं, मिसालें तो बहुत हैं। आप पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं पॉइंट ऑफ व्यू के, इमरान खान है, इमरान खान की सियासत के ऊपर हम बात नहीं कर रहे, इमरान खान की जाती जिंदगी के ऊपर बात नहीं कर रहे। जमाइमा खान का इंटरव्यू मौजूद है कि इमरान खान की तरफ वो अपील क्यों हुई थी, अट्रैक्ट क्यों हुई थी। एक बहुत बड़ा चैनल था, जो म्यूजिक चैनल था, उसकी एक आरजे थी, जो वीजे थी, जो प्रोग्राम को रन करती थी, ठीक है, होस्ट करती थी, उसने इस्लाम कबूल किया। एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई अमेरिका के अंदर, इकना की। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने कहा, और वीडियो मेरे पास मौजूद है, उसने कहा कि मैं एक अरसा पहले एक ऐसे शख्स को मिली थी कि जिसकी तालीमात ने, जिसकी सोच ने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। उसने इस्लाम कबूल कर दिया। एक औरत हर एतबार से मर्द को मजबूत पसंद करती है। जब वो उसके साथ बैठता है, वो अपने कॉन्सेप्ट्स में क्लियर हो। हिंदू बात करते हैं कि हमारी औरतों को ले गए, हमारी औरतों को ले गए। तुम्हारे नजरियात हैं क्या? वेद तुम नहीं मानते, मनुस्मृति तुम नहीं मानते, पुराणास तुम नहीं मानते, गीता तुम नहीं मानते, जो तुमसे सवाल करो तुम उसको नहीं मानते, नास्तिक को तुम मान लेते हो, जो जहान का छछोर और कूड़ कबाड़ तुमने इकट्ठा किया हुआ है, उसके बाद गिला करते हो मुसलमानों से। ना तुम्हारे पास आइडियोलॉजी है, ना तुम्हारे पास कोई फंडामेंटल्स हैं, ना तुम्हारे पास कोई कॉन्सेप्ट्स हैं, ना तुम्हारी कोई बेसिस हैं, ना तुम्हारी कोई फाउंडेशंस हैं, ना तुम्हारी कोई लॉजिक और रैशनल है। उसके बाद कहते हैं जी हमारी औरतें जा क्यों रही हैं। एक औरत को तुम्हारे पास से मिलता क्या है? ना उसको नजरिया मिलता है, ना उसको अखलाक मिलता है, ना उसको कोई समाज मिलता है, ना उसको कोई प्यार मिलता है, ना उसको कोई सम्मान मिलता है। मिलता क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। क्या मिलता है उसको? टाइम टाइम फिश, 0/0। ऐसी औरत क्यों रुकेगी और कितनी देर रुकेगी? समाज की नजरों में बचने के लिए तो वो रुक सकती है, मगर तुम्हें क्या खबर। मादरत, मैं आपके प्रोग्राम को हाईजैक नहीं करना चाहता था। ये 2-3 पॉइंट्स थे जो मैं रखना जरूरी समझता था कि कॉन्सेप्ट हमारे समझ आ जाए कि क्या वजह है। बस भाई आपने काम वो किया है कि इस तरह से हिंदू जो महिलाएं हैं उनके दिल में और मोहब्बत जाग जाएगी ना मुसलमान मर्दों के लिए, कि क्या है उनके कॉन्सेप्ट और क्या बैकग्राउंड है और किस तरह से वो मजबूत रहते हैं दिमागी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे ना। तो वाकई ऐसा है। जी सिस्टर अनुषा आप कुछ कह रही हैं? सिस्टर ईशा रोय का शायद जो है वो कुछ नेट का इशू आ गया है। अनुषा यस बिजी हैं। तो आमिर भाई माशाल्लाह से जैसे इन्होंने कहा ना डॉक्टर मोमिना ने, कि आपने तो उल्टा जो है वो ललचा दिया है हिंदू महिलाओं को, जो आपने खासियत बता दी है। तो अब नेचुरली कोई औरत अट्रैक्ट होती है किसी मुसलमान भाई की तरफ, तो इसमें फिर दोष हमारा नहीं होगा, वो इस्लाम की क्वालिटीज हैं। इस्लाम कबूल करवाएं।
अब जिहाद के साथ लव जोड़ दिया, कभी जिहाद के साथ टेररिज्म जोड़ दिया, कभी जिहाद के साथ रेडिकलिज्म जोड़ दिया, कभी जिहाद के साथ एक्सट्रीमिज्म जोड़ दिया, कभी जिहाद के साथ फंडामेंटलिस्ट जोड़ दिया, कभी जिहाद के साथ ट्रेडिशनलिस्ट जोड़ दिया। ये सारी टर्म्स जोड़कर जिहाद जैसे एक प्योर सीन को इन्होंने फेड और ब्लर करने की, गदला करने की कोशिश की, और ये समझते हैं कि शायद इससे काम रुक जाएगा। ये बेफिक्र हो जाएं, ये काम रहेगा, आएंगी महिलाएं आएंगी। मैंने आपको कहा था छेद है, मेरी को सुनता नहीं, बंदे भी आएंगे, औरतें भी आएंगी। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और आमिर भाई, जिस तरह आपने क्लियर किया है ना, और आज की स्ट्रीम के बाद इंशाल्लाह ताला बहुत सारे वो कॉन्सेप्ट जो गलत कॉन्सेप्ट बने हुए हैं वो भी क्लियर होंगे। ये जो लव जिहाद खुद से लाए हैं और खुद ही उन्होंने बना लिया है, और खुद ही ये भी बता रहे हैं कि ये है क्योंकि मुसलमानों में वो ये काम करते हैं, और इस तरह से फिर वो आगे फिर हमारी महिलाओं को इस तरह से जबरदस्ती करके मना कर रहे होते हैं काम के लिए, और फिर वो तलाकें लेती है। मतलब वो बहुत आगे प्रोपेगेंडा वो तो जिस तरह भी बनाता है इंडियन मीडिया, जिस तरह सारे मीडिया काम कर रहा होता है, तो वो तो इतनी आगे तक पहुंच जाता है जिसका जो हम कहते हैं जलेबियां, ना कोई सर नजर आता है ना पैर, तो वो आगे आगे जाके वो इसी तरह होता हो। तो ये बड़ी जरूरी बात है और सबको समझना भी बहुत जरूरी है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, जिसका वजूद ही नहीं है इस्लाम में, और आपने उसको इस्लाम से जोड़ के इस्लाम का नाम दे के एक पूरा प्रोसेस बना दिया और उसका प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। जी, मैंने तो पहले कहा था, मैं माजरत चाहता हूँ, एक जुमला बोल लूं, फिर मैं चाहूंगा सिस्टर्स बात करें। मैंने पहले भी एक चीज कही थी आप लोगों की पहली स्ट्रीम के अंदर, हमारे मुसलमान मर्दों के लिए ये बात काफी है कि अपने घरों, अपने मोहल्लों में देखें, मुसलमान लड़कियां 30-30, 35-35 साल की हो गई हैं जिनकी शादियां नहीं हुई, और तुम्हें मौत पड़ती है उधर, तुम चले हो जी दावत देने के लिए हिंदू लड़की को। भाई हिंदू लड़की को दावत वो तुम्हारी बीवी दे लेगी, जिसको तुम मुसलमान से शादी करो ना लड़की को, उसको ले जाना कि बेगम साहबा ये हिंदू लड़की है, इसको दावत दे दें, उसको, औरत को काम करें। आप अपनी मुसलमान खवातीन को मजबूत करें, अपने घर को खाली करके आप बाहर जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले भी बात की थी, मैं तो उस हकीकत पर बात कर रहा हूं कि जो मुआशरे के अंदर राइज हो चुकी है, इसको रोकें कैसे ये लोग, इसके पीछे हिकमत क्या है, इसको देखें। तो हमारे लोग टग ऑफ वॉर की बजाय, इस कष्ट करने की बजाय, मैं एक वाकया भी सुनाना चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ, सॉरी, बड़ा मुख्तसर सा तेजी से। वाकया ये है कि मैं पाकिस्तान में नहीं था उन दिनों में, तो मुझे एक इंडोनेशिया से कॉल आई, और उस बंदे ने कहा कि यार मैंने ना शादी कर ली और अब मैं पछता रहा हूं कि वो तो जनाब अपना जो है ना वो नॉन मुस्लिम थी, तो मैं अब क्या करूं, तो छोड़ दूं उसको या क्या करूं, ये चीज में कश्मकश में लगा हुआ था। मैंने जब उस बंदे से बात की, मैंने कहा, मुझे कहने लगा मैं आपकी अपनी बेगम की ना आपसे बात करवाना चाहता हूँ कॉन्फ्रेंस कॉल में, मैं आपको साथ अटैच कर लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल में बात की, तो उसकी बेगम जो है वो बहुत ज्यादा चिड़ी हुई, और उसने जब बात की तो पता चल रहा था कि जैसे दोनों ठीक ठाक लड़ते हैं इस इशू के ऊपर। आप मुझे बताओ, आपने अपनी जिंदगी को अजीरन बनाना है, एक ऐसी लड़की को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आओ जो आपके नजरिए को समझती हो, जो आपने जरूर जो है ना वो ऐसा काम करना है जो सारी जिंदगी आपकी औलाद भी कश्मकश में रहे और आप भी कश्मकश में रहो। ये नजरियात छोटी चीज नहीं होती, इसको हल्का ना लें। मैं बड़ी बात इस पे कर चुके हैं हम लोग उस प्रोग्राम के अंदर, जब आपने इंटरफेथ मैरिजेस की, मेरे ख्याल से सिस्टर अनुषा का गालबन या प्रैक्टिसिंग मुस्लिमा सिस्टर का प्रोग्राम था, मुझे याद नहीं, बहरहाल उसमें हमने की थी। बहुत शुक्रिया।